Very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are fine and everybody is fine at home, children. And I just hope you all are working very hard toward your studies and justifying your work. Children, in this today video, I am going to discuss with you some of the questions which are came in the sample question paper of 2020 and 2021. Here I have written and mentioned some of the question which have the weightage of the 3 marks question. This all marks are come under the 3 marks, and sometime in other papers also it can be asked in the 2 marks questions also, and can be asked in the 4 marks. So this all I have written here the 4 questions, and these 4 questions are very important as they can came in your 2 marks weightage also, they can be come in your 3 marks and 4 marks. So they basically varied in this only, but maximally they were asked in the 3 marks question. Secondly, these questions are asked in the paper of, like this question is the explain the process involved in the learning of attitude. So this question was asked in the paper of 2018, and this question explains the reason that made people join group. It was also asked in the 2019 paper. So they are very important, and they are repeated in the one of the 2 or 3 papers also. So let us discuss about them. So the first question is, distinguish between social pressure and social stress. Here the word is social pressure and social stress. इन दोनों में difference क्या है? When you are studying the chapter stress, जब आप ये chapter पढ़ रहे थे stress chapter, so in that chapter you have studied that there are so many types of stress. बहुत तरीके के types होते हैं stress से. फिजिकल स्ट्रेस होता है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होता है, साइकोलॉजिकल होता है, और वहीं आपने पढ़ा था सोशल स्ट्रेस. सो सोशल प्रेशर और सोशल स्ट्रेस में डिफरेंस यही है कि जो सोशल प्रेशर है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है. सोशल प्रेशर इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस का टाइप है सोशल प्रेशर, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस. एंड सोशल स्ट्रेस जो है वो अपने में एक टाइप है सोशल स्ट्रेस. सो इन द टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस देयर आर 4 मेन टाइप्स. I hope it is visible to you all, and you all are writing it down also, some of the point which I am discussing over here. So there are physical stress होता है कुछ लोगों को, environmental stress होते हैं. physical stress include like the stress of illness and anxiety and any injury happen in the body. Means whatever the thing which are related to the body is come under the physical stress. Environment stress, which was created by the environment, just like right now extreme cold weather will becoming an environmental stress for everyone. So this is the point. Environmental stress include also the natural disaster. Whatever the natural disasters are there, they also included under the environmental stress, just like the earthquake, फ्लड, ये सब भी आ जाते हैं तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में ही आते हैं. साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की अगर हम लोग बात करें तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आता है फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रेशर. प्रेशर भी एक तरह का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है. अगर कोई आपको प्रेशर कर रहा है, प्रेशर भी 2 तरीके के होते हैं. एक होता है इंटरनल प्रेशर और एक होता है सोशल प्रेशर, विच वॉज डिस्कस्ड ओवर हियर. Internal pressure are those pressure which are imposed by the person by their own, by themselves.
जो पर्सन अपने आप से अपने आप को एक स्ट्रेस देता है, तो दैट इज एन इंटरनल स्ट्रेस. बट व्हेन द स्ट्रेस वाज इम्पोज्ड बाय द सोसाइटी, बाय द पीपल, सो दैट कम अंडर द सोशल प्रेशर. ओके, वो सोशल प्रेशर होता है. जो सोशल प्रेशर मीन्स जो समाज, जो सोसाइटी हमारे ऊपर इम्पोज कर रही है, तो दैट इज अ सोशल प्रेशर. Okay, I hope you are understanding about the social pressure, like for achievement, for getting the good marks. Jise your relative will put a pressure on you that you have to come the first rank in your classroom. So social pressure are those pressure which are put up by the person, by the people, by the society, and it is a topic which come under the psychological stress. ये psychological stress का part. In contrast to this one, the social stress is also there. It is also one of the type of stress, social stress. Social stress include like something, a death in the family, breakup relationship, strained relationship, whatever the stress which was imposed, yeah, whatever the stress which we feel because of the people. Okay, वो स्ट्रेस जो हमें लोगों की वजह से होता है या लोगों के आसपास रहने से हो रहा है, उनके प्रेजेंस में सारी चीजें हो रही हैं, तो दैट कम अंडर द सोशल स्ट्रेस. सोशल प्रेशर और सोशल स्ट्रेस में डिफरेंस यही है. द फर्स्ट पॉइंट यू विल राइट डाउन दैट सोशल प्रेशर is a point which come under the psychological stress, and social stress is an individual entity. It is has the individual value. Now social pressure is the pressure which imposed by the society, by the people on an individual. It is something the psychological only. Okay, but whereas social stress is not only psychological, it can be physical also, it can be emotional also, like strained relationship, disturbed interpersonal relationship. So these things come under the social stress. I hope this is clear to you, this question. Now you will be able to write down this question in your examination. What is the difference between social pressure and social stress? Now moving to the next question. The next question is, what are life skill, and list any two life skill. What are life skill and list any two. Should I erase this one, the first question? I hope the first question will be clear to you. Okay, there is no need, I am explaining the topic in here. So the answer of this question, what are life skill? Life skill क्या है? What is life skill? लाइफ स्किल को समझने से पहले आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल स्ट्रेस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रेशर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज लाइफ स्किल एंड लिस्ट एनी टू लाइफ स्किल. तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, लाइफ स्किल की अगर हम लोग बात करें तो लाइफ स्किल वो स्किल होते हैं विच मेक योर लाइफ टू मूव स्मूथली, टू विच मेक योर लाइफ टू मूव एफिशिएंटली. ये होते हैं लाइफ स्किल जो आपकी लाइफ को बहुत ही स्मूथली लेके चले, जो आपकी लाइफ को बहुत ही एफिशिएंटली लेके चले. एंड वी कैन डिफाइन इट हियर, व्हाट इज लाइफ स्किल. सो लाइफ स्किल इज अ स्किल टू रेगुलेट आवर लाइफ, efficiently and smoothly. So life skill क्या है? It is a skill to regulate our life efficiently and smoothly. लाइफ में को
अच्छे से अगर आपको यू हैव टू स्पेंड इट, सो यू हैव टू लर्न सम ऑफ द स्किल्स. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ स्किल यूजली ट्रेनिंग उनको दी जाती है दोज हु आर नॉट हैविंग द स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनैलिटी. You also have studied children about stress resistant personality. What are stress resistant personality? A person, someone is having a personality who's having a stress resistant. उनकी personality stress resistant होती है. They are able to cope up with the stress. They basically less prone to illness. Illness भी उनको कम होती है. तो ये उनकी पर्सनालिटी होती है. जैसे टोबासा ने इस स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी को 3 C's में डिफाइन किया था कि ऐसे लोग कमिटेड होते हैं, कंट्रोलेबल होते हैं, चैलेंजेबल होते हैं. बट सभी कोई में ऐसी स्ट्रेस रेजिस्टेंट पर्सनालिटी नहीं होती. तो जिनमें नहीं होती तो वो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली दे हैव टू लर्न सम ऑफ द लाइफ स्किल. हियर इन योर क्वेश्चन व्हाट आर लाइफ स्किल, आप ये डिफाइन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज लिस्ट एनी 2 लाइफ स्किल. So there are so many life skills which are discussed in your book, but out of many you have to discuss only the 2 in detail, as it is asked in a 3 marks question. So what is life skill? Include the 1 marks, and the list any 2 life skill will include the 2 marks. So 2 or 1 3 marks हो जाएंगे आपके. इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है. सोशल प्रेशर और सोशल स्ट्रेस क्वेश्चन में 3 marks का क्वेश्चन है, तो you require the 3 points to differentiate between both of them. And here is 1 marks weightage of 1 marks is here, and it is of 2 marks. And so दोनों लाइफ स्किल को आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है. सो बहुत सारे लाइफ स्किल हैं, जैसे कि सबसे पहला है असर्टिवनेस, भी एक लाइफ स्किल है. पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ केयर, टाइम मैनेजमेंट, ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स. सो ये सारी कुछ लाइफ स्किल है जिनसे पॉजिटिव वेलबींग इन्हांस होती है. तो इस क्वेश्चन में हमें 2 लाइफ स्किल को डिस्क्राइब करना है. तो आप एक लाइफ स्किल ये ले सकते हैं. द फर्स्ट वन यू कैन टेक असर्टिवनेस. Anyone, I will explain you 2 or 3 or 4. So you will take any of the assertiveness ले सकते हो, टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट. देन थर्ड वन है सेल्फ केयर. देन फोर्थ वन इज पॉजिटिव थिंकिंग. सो पॉजिटिव एटीट्यूड कह लो या पॉजिटिव थिंकिंग कह लो, पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग. ठीक है, वॉट एवर यू विल बी कंफर्टेबल. सो सबसे पहले है असर्टिवनेस. असर्टिवनेस की का मतलब होता है सेइंग नो टू एनीवन. असर्टिवनेस मीन्स सेइंग नो. सेइंग नो मीन्स असर्टिवनेस भी एक तरह का लाइफ स्किल है जो सिखाया जाता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल आर वेरी मच नॉट असर्टिव. दे आर अनएबल टू से नो टू एनीवन, एंड बिकॉज ऑफ सच थिंग दे इंडल्ज देमसेल्फ इन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. अपने आप को वो बहुत सारे प्रॉब्लम में रख देते हैं. तो ये उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो अपने पॉजिटिव हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप असर्टिव हों. जहाँ आपको लगता है कि ना कहना चाहिए तो आप ना कहो. नो ऑल्सो हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ टू बी अ स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, टू बी अ पॉजिटिव हेल्थ. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द लाइफ स्किल. सेकेंड इज द टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट मीन्स what is the meaning of time management? What is the meaning of time management? Means it doesn't mean that how you will manage the time. It is the meaning that how you take out some time for your hobbies, for your interest from your busy schedule. टाइम मैनेजमेंट का मतलब बच्चों आप क्या समझते हो? मतलब ये होता है ना, टाइम मैनेजमेंट हम लोग यूजली सोचते हैं टाइम को घटाना बढ़ाना. इट इज़ नॉट लाइक टाइम मैनेजमेंट. टाइम मैनेजमेंट क्या है?
आप अपने लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हो अपने बिजी शेड्यूल से, दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और निकालना भी चाहिए, ठीक है। एंड इस दैट इज व्हाट इज नोन एज सेल्फ केयर। दिस इज ऑल्सो अ लाइफ स्किल, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर मीन्स ये नहीं कि टू लुक ब्यूटिफुल, टू लुक अट्रैक्टिव, दैट इज अ सेल्फ केयर, नो। सेल्फ केयर मीन्स ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, doing proper exercise, doing yoga, doing meditation, basically making your mind and body healthy in a positive way. No, draw out all the negativities. So that all include the self care. And the lastly, positive attitude, yeah, positive thinking is also one of the life skill. थिंकिंग को, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, अपने एटीट्यूड को भी पॉजिटिव रखो, इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, रैशनल थिंकिंग करना, पॉजिटिव थिंकिंग करना इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल which help you to manage your stress as well as which help you in promoting your positive health and well-being. So I hope these two questions were very much clear to you all children. Distinguish between social pressure and social stress, and what are life skill. List any two life skill. Now the third question, we are moving toward the third question. The third question is, explain the reason that make people join group. Explain the reasons that make people join group. What are the reasons क्यों जो है लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं? What is the reason of joining the group? So in this is of again of 3 marks question. So obviously first of all you will define about what is group. ग्रुप क्या है आप ये बताएंगे इसमें, ठीक है। आप सबसे पहले इसमें ये डिस्क्राइब करेंगे कि व्हाट इज ग्रुप। सो अ ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ two or more individuals. A group is an organized system of two or more individuals who shared a common goal or motive and are interdependent on each other. So this is the meaning of the group. I hope you will write it down. A group is an organized system of two or more individuals who shared a common goal or motive and are interdependent. So group क्या है? Group दो या दो से ज़्यादा लोगों का समूह होता है और जो कि ऑर्गेनाइज्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। ग्रुप में लोगों के मोटिव्स और गोल जो होते हैं ऑलमोस्ट सेम होते हैं, वे लोग एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोहेसिवनेस होती है। सो कोहेसिवनेस का मतलब होता है कि बिलोंगिंगनेस, ग्रुप में बिलोंगिंगनेस होती है, एक्सट्रीम बिलोंगिंगनेस होती है, कोहेसिवनेस। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो ग्रुप के बारे में बताने के बाद अब आप बताओगे व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप, क्यों ग्रुप ज्वाइन करते हैं, ग्रुप क्या है ये बता दिया। देन यू विल राइट डाउन व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप। सो देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप, बहुत सारे रीजंस है ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें कि सबसे पहला है सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के लिए लोग ग्रुप ज्वाइन करते हैं। सेकेंड स्टेटस, स्टेटस के लिए ज्वाइन करते हैं। थर्ड
fulfill their psychological need. In order to fulfill their psychological need को fulfill के लिए join करते हैं security, status, fulfill their psychological need. Then common goal और motive होता है, इसलिए group join करते हैं, common goals and motives. So ये कुछ reasons हैं group को join करने के लिए कि लोग group क्यों join करते हैं. Why do people join the group? So people join the group for the security. पर्सन को लगता है कि जब वो ग्रुप में होते हैं तो वो सिक्योर होते हैं, वो सेफ होते हैं. अगर उनको कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है तो अदर पीपल विल ऑल्सो केम टू हेल्प देम. ग्रुप क्या है? एक फैमिली भी एक ग्रुप है, स्कूल भी एक ग्रुप है, पीयर ग्रुप भी आपका एक ग्रुप है. तो ग्रुप बेसिकली जब हम लोग ग्रुप में होते हैं तो वो हमें सिक्योरिटी देता है, एक यूनिटी की फीलिंग देता है, एक पावर देता है. आपने देखा होगा कि व्हेन यू आर वॉकिंग अलोन ऑन द स्ट्रीट एंड व्हेन एनी पर्सन इज वॉकिंग इन अ ग्रुप, सो देन यू सी द कॉन्फिडेंस लेवल इन बोथ द पर्सन. व्हेन एनीवन इज वॉकिंग इंडिविजुअली एंड व्हेन एनीवन इज वॉकिंग विद द ग्रुप, so it increases the confidence level also. It enhances your personality also to be within a group. इसके बाद ग्रुप क्या है? सिक्योरिटी के बाद स्टेटस भी देता है. आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप जैसे फैमिली भी एक ग्रुप है, फैमिली एक स्टेटस आपको देता है कि यू बिलोंग टू सच काइंड ऑफ फैमिली, यू बिलोंग टू दिस कास्ट. सो स्टेटस भी आपको मिलता है, एक रेपुटेशंस बनती हैं. ग्रुप आपके साइकोलॉजिकल नीड्स को भी फुलफिल करता है. साइकोलॉजिकल नीड्स का क्या मतलब हुआ? साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होते हैं पर्सन के? जैसे एफिलिएशन, अचीवमेंट, पावर, ये सारे नीड साइकोलॉजिकल होते हैं. हर कोई को चाहिए कि एनीबडी इज देयर हु लिसन टू देम, एनीबडी इज देयर हु केयर फॉर देम, हु अंडरस्टैंड देम. तो दैट इज अ साइकोलॉजिकल नीड. एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, ये सारे नीड साइकोलॉजिकल नीड है. तो ये भी फुलफिल होते हैं ग्रुप से, जब हम ग्रुप में होते हैं. इसके बाद है ग्रुप का कॉमन गोल और मोटिव. ये हमारे गोल और मोटिव्स को भी फुलफिल करता है. ग्रुप में जैसे अगर पीयर ग्रुप्स है तो उसमें सभी का गोल हो सकता है कॉमन हो. तो हम लोग क्या होता है, when the goal were common and when the motives were common, we move toward in the same direction togetherly. एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में जाते हैं. तो which will help you to reach to your destination more easily and more quickly. बहुत जल्दी आप वहाँ पे पहुँचेंगे और बहुत आराम से पहुँचेंगे without any difficulty, because you are not walking alone, you are walking with the people. So obviously the route will become very easy. So ये कुछ reasons हैं जो कि people group join करते हैं. ठीक है? So I hope children the 3 questions were clear to you all. The first one is distinguish between social pressure and social stress. What are life skill to life skill? Explain the reason that make people join group. Now the last question I am going to discuss with you. What are the processes involved in the learning of attitude? This is again a 3 marks question. So obviously 3 points are required. And when see, इसमें भी 2 conditions है. Either you write down all the points, or either if you are writing the 3 points, so it should be in a detailed manner. Okay? 3 marks question. Required your word limit should be around 60 to 100 words should be there for the 3 marks question. Okay? So इसको समझते हैं. This question explain the processes involved in the learning of attitude. So first of all here the word is came, what is attitude? Basic से ही समझेंगे सारी चीजें. So सबसे पहले कि attitude क्या है? What is attitude? So attitude है basically thoughts, ideas, opinion,
belief which you hold regarding any topic. That is a attitude. Attitude means कोई thought, कोई idea, कोई belief आप किसी topic के regarding रख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं attitude. ओके सो इसमें क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि इन्वॉल्व है लर्निंग ऑफ एटीट्यूड. प्रोसेसेस पूछ रहा है. प्रोसेसेस मीन्स क्या प्रोसीजर है जिससे कि हम लोग एटीट्यूड लर्न करते हैं, यानी एटीट्यूड लर्न कहाँ से हो रहा है, एटीट्यूड कैसे लर्न हो जा रहा है. व्हाट आर द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड. सो एटीट्यूड्स भी लर्न होते हैं, थॉट्स भी लर्न होते हैं, बेसिकली दे फॉर्म होते हैं. तो वो कैसे फॉर्म होते हैं? तो एटीट्यूड फॉर्म होते हैं लर्निंग के बेसिस पे. हम लोग लर्न करते हैं एटीट्यूड को. कहाँ से लर्न करते हैं वो प्रोसेसेस आपको इसमें लिखने हैं. जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आएगा, वी लर्न द एटीट्यूड बाय एसोसिएशन. बाय एसोसिएशन, this is the first point. Second, we learn the attitude by reward and punishment. By reward and punishment, on the basis of reward and punishment, हम लोग एटीट्यूड एसोसिएशन से लर्न करते हैं. हम लोग एटीट्यूड ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे करते हैं. थर्ड इज बाय ऑब्जर्वेशन. बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके भी हम लोग लर्निंग एटीट्यूड को लर्न करते हैं. सो ये कुछ है प्रोसेसेस जो कि इन्वॉल्व है लर्निंग ऑफ एटीट्यूड. बाय एसोसिएशन, बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, बाय ऑब्जर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट है द फोर्थ वन इज बाय कल्चरल नॉर्म्स. बाय कल्चरल नॉर्म, जिस भी कल्चर में हम लोग रहते हैं उस कल्चर से भी हम लोग बहुत सी चीजें सीखते हैं. एंड देन फाइनली इज बाय एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन. हमें इंफॉर्मेशन का एक्सपोजर कई चीज़ों से होता है. जैसे कि मीडिया से भी इंफॉर्मेशन मिलती है, बुक से भी मिलती है, कोई रिसोर्स पर्सन भी वो आपके एटीट्यूड को लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं. तो एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है. Exposure to information. So these are the points, children. You can note it down for the answer of this question. Explain the processes involved in the learning of attitude. First, by association, by reward and punishment, by observation, by cultural norm, by exposure to information. सबसे पहला है बाय एसोसिएशन. यस चिल्ड्रेन, एटीट्यूड लर्न होते हैं एसोसिएशन से भी. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड लाइक द पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर, द चाइल्ड ऑल्सो स्टार्ट लाइकिंग द पर्टिकुलर सब्जेक्ट. ऐसा होता है. अगर बच्चों को मैथ्स के टीचर बहुत अच्छे लगते हैं तो उन्हें मैथ्स भी अच्छा लगने लगता है. तो बेसिकली एसोसिएशन के थ्रू भी वे लोग एटीट्यूड फॉर्म करते हैं कि टीचर अगर अच्छा है तो सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, और ऐसा होता है. ठीक है. सेकेंड होता है रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बेसिस पे भी एटीट्यूड फॉर्म होता है, लर्निंग होती है. जैसे कि अगर हमें किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड मिल रहा है तो हम ये सोचते हैं कि वो चीज़ बहुत अच्छी है और हमारा ये एटीट्यूड फॉर्म होता है दैट द थिंग वॉज वेरी गुड. एंड इफ फॉर एनीथिंग we get a punishment, so we learn an attitude, we form an attitude that particular thing was not appropriate, was not good. Because of that one, because of doing such kind of behavior, we are getting punishment, so we should avoid such thing. So such kind of attitude, such kind of thoughts are formed by observation. Many attitudes we form by observing other. दूसरों को देख के हम लोग एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं. इफ फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, इफ वी आर नॉट फीलिंग कोल्ड बट इफ द अदर पर्सन इट्स वेरी कोल्ड, सो वी ऑल्सो स्टार्टेड फीलिंग कोल्ड. ओके, हाँ कोल्ड है, बहुत कोल्ड है. सो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. कल्चरल नॉर्म, कल्चर जिस भी हम लोग कल्चर में रहते हैं
वो भी हमारे एटीट्यूड को लर्न करने में बहुत हेल्प करती है। बहुत सी चीज़ें हम लोग सीखते हैं जो भी कल्चर में आप रहते हो, जैसे जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी वट एवर द फैमिली इन्वायरमेंट वर देयर, वट एवर द अपब्रिंगिंग्स आर देयर, यू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर. Similarly, exposure to information is also one of the process which is involved in the learning of attitude. Like we get exposed, we get an information from the books. किताबें भी हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करती हैं, हमारे थॉट्स को चेंज कर देती हैं, ठीक है, हमारे थॉट्स बनाती हैं किसी भी चीज़ को लेके. मीडिया हमारे थॉट्स को बनाती है, लोग हमारे थॉट्स को बनाते हैं. So many things were there which determine our thought pattern, which determine our attitude. So I hope children you understand all these questions very properly, and this last one also, what are the processes involved. So these are some of the processes and I had described it also. But still, if you find any doubt regarding any of these questions which I had discussed right now, you will see this video and ask me in the classroom. I just say thank you so much for carefully observing this one.